Good evening, everyone. Am I audible to you? Please let me know in the chat box. So now we are just going through the one-shot revision for STAT, which is nothing but for 10th CBSE batch. Okay. So the chapter number 14, which is nothing but statistics. Am I audible to you all? Please let me know in the chat box so that we can begin with our very first chapter for one-shot revision for 10th CBSE, right? So we are just going through statistics. As you all know, the weightage for statistics and probability will be almost in marks. So definitely there will be 4-marker question based on this stat part. So what actually we have to do in this chapter? First of all, we'll just go through it, okay? Whenever we are talking about statistics, so for your 10th standard, we are just going through few central tendencies, measures of central tendency. You may definitely know what it means. The first thing is mean, then it is nothing but mode, then median. So the main part is that we just have to check that how can we find the value of mean for various types of data. After going with mean, we'll go for mode and after that for median. But we just have to check that जो भी कुछ आपके पास डेटा रहेगा उसका आपको टाइप कैसे मिलने वाला है, बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग विद द स्टैटिस्टिक्स एंड मेनली फॉर योर 10th CBSE we are just going through few concepts based on central tendency, which is nothing but जो भी कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशंस रहेंगे सिर्फ एट दी वन ग्लांस आपको चेक करना है कौन कौन से टाइप क्या आपको आंसर मिलने वाला है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दिस. सो फॉर दैट जब भी आपके पास ग्रुप्ड डेटा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, ओके वी कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट. बट द थिंग इज दैट जो आपके पास रहता है डेटा वो जिस टाइप का रहता है बेस्ड ऑन इट आप अलग अलग फॉर्मूलेज उसके बना दोगे. जब आप 10th के बारे में डिस्कस कर रहे हो, सो मेनली विल टॉक अबाउट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा. Mainly we'll just talk about grouped frequency data, which is nothing but either there will be few values of x1, x2, x3 and so on up to xn, and for that you may have corresponding frequencies which is nothing but f1, f2, f3 and so on up to fn. So for each and every observation you can say that x1 observation is repeated for f1 times, x2 observation is repeated for f2 times, x3 observation is repeated for f3 times and so on. So this will be the first type of data which is known as a discrete group data, and the second type will be something like this. So instead of directly giving the values of exercise, the values of observation, now you may have those observation in the class intervals. For example, suppose first class interval will be from 0 to 10, then from 10 to 20, then from 20 to 30 and so on. And for all those class intervals you may have corresponding frequencies for it. You may have corresponding frequencies for it. Are you getting this one? So actually we just have to go through few concepts while starting with this data. So mainly the frequency distribution will based on two types. The first one is nothing but discrete group data, where you have direct values of observation. Where you have direct values of observation, or we can say that the observation with a single values. And for the next type of data, it is known as a continuous frequency distribution or continuous group data. Okay. So whenever we are starting with this case, that is continuous group data, we just have to check that whenever we are dealing with this continuous group data, we just have to go through few concepts, because in this case आपके पास जो भी कुछ क्लास इंटरवल्स रहने वाले हैं उसके लिए कुछ लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऐसा आपके पास फॉर्मूला रहने वाला था. ये समझ में आ रहा है? ये इतना क्लियर हो रहा है सबसे पहले. सो फॉर दैट जो भी कुछ आपके पास क्लास इंटरवल है उसके लिए लोअर लिमिट क्या रहेगा, उसके लिए अपर लिमिट क्या रहेगा, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा. अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपके पास जो डेटा है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 20
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये जो हम डिस्कस करें बहुत ही ज्यादा बेसिक सारी क्वेश्चंस है, बट ऑब्वियसली ईच एंड एवरी क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो ये जो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के क्लास इंटरवल्स है, सो फॉर ईच एंड एवरी, सपोज फर्स्ट के लिए कुछ आपके पास फ्रीक्वेंसी रहेगी 5, देन नेक्स्ट के लिए रहेगा कुछ 8, आफ्टर दैट देयर विल बी 11 एंड आफ्टर दैट देयर विल बी 6। सो मेनली इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, ये हम सिर्फ नेक्स्ट 5 मिनट्स में देखने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है? अगर इस टाइप का मतलब आपके पास अगर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा रहता है, तो इन दैट केस सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपके पास रहेगा क्लास इंटरवल, फॉर दैट जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है, फॉर दैट लोअर लिमिट का वैल्यू क्या रहेगा, अपर लिमिट का वैल्यू क्या रहेगा। ऑब्वियसली लोअर लिमिट इज नथिंग बट जो ये फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा था, उसके लिए लीस्ट वैल्यू क्या मिलेगी। फॉर फर्स्ट क्लास लोअर लिमिट विल बी 10 एंड अपर लिमिट विल बी 20। ये जो आपके पास रहने वाले थे डिस्टिंक्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन है, फॉर दैट द अपर लिमिट फॉर फर्स्ट डेटा इज सेम एज लोअर लिमिट फॉर द सेकेंड डेटा। अगर ये ऐसा टाइप रहता है, मतलब फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल जिस पॉइंट पे छूटता है, आप अगेन वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, आप अगेन वहीं से स्टार्ट कर रहे हो। अगर ये ऐसा रहता है आपके पास कुछ टाइप, देन हम इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड बिकॉज जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने उनका ग्रुप बनाया था, इसके लिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये पूरी कंसेप्ट से समझ में आ रही है? डन। तो आपको करना क्या पड़ता है, इसके लिए हमें मीड वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यूजुअली हम उससे बोलते हैं क्लास मार्क। सो क्लास मार्क इज नथिंग बट जो भी कुछ आपके पास रहेगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, आपको उसकी एडिशन कंसीडर करनी है एंड जस्ट डिवाइड इट बाय 2। जो भी कुछ आपका लोअर लिमिट रहेगा, जस्ट ऐड अपर लिमिट इनटू इट एंड डिवाइड इट बाय 2। दैट इज, इस केस में आपको क्या मिलेगा, 50। नेक्स्ट क्लास में क्या मिलेगा, 25। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर आपके पास रहता है ग्रुप डेटा जिसके क्लास विड्थ सेम है, क्लास विड्थ इज नथिंग बट हाइट ऑफ दैट क्लास, सब जगह पे 10 10 10 10 मिलने वाला है, तो ईच एंड एवरी टाइम के लिए आपको अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। अगर ये 30 40 आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ईच एंड एवरी इंटरवल के चाहो तो लोअर लिमिट में या फिर अपर लिमिट में अगर आपको 10 का गैप मिल रहा था, तो डायरेक्टली आप क्लास मार्क में भी 10 ऐड कर सकते हो। ये रहेगा आपका फर्स्ट ट्रिक, मतलब झट से आपको क्लास मार्क का ये पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। ये इतना क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? जैसे हमने बोला, ये आपको कई बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ विल जस्ट स्टार्ट विथ द एक्चुअल मीन प्रोसीजर। मीन कैसे रहेगा, वैल्यू क्या फाइंड आउट करने वाले हो, एंड सो ऑन। हम सिर्फ नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में सबसे पहले ये सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्चुअल PYQs। ओके, इस सेशन में हम जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो सारे के सारे आपके PYQs है। तो अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर आउट इन दिस चैप्टर। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज दैट मीन। अगर रॉ डेटा रहता था तो फिर आप यूज करने वाले थे समेशन xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। बट जब आप ग्रुप डेटा के बारे में डिस्कस करते हो, दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, दैट इस केस में जब आप ग्रुप डेटा बोलते तो ईच एंड एवरी xi के लिए आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रहने वाले हैं। सो इंस्टेड ऑफ ओनली कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ समेशन x, यू हैव टू गो थ्रू समेशन ऑफ fi xi, मतलब x को भाई कभी भी अकेला नहीं छोड़ने का, राइट, बिकॉज इन योर डेटा आपके पास ईच एंड एवरी x के लिए fi के वैल्यू रहने वाले। गेटिंग दिस वन? सो फर्स्ट थिंग इज दैट xi, ईच एंड एवरी xi को आपको इनटू fi कंसीडर करना है ही, एंड जो भी कुछ आपका स्मॉल n रहता है, यू जस्ट हैव टू पुट कैपिटल N देयर। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा।
तो एक और चीज आपके पास है विच इज नथिंग बट अज्यूम डेटा। कैसे करना है हम बाद में देखेंगे ही, बट ये पहले समझ में आ रहा है क्या, बोलो आप। ओके, ग्रुप डेटा का मीनिंग क्या रहता है, जितने भी कुछ आपके पास रहने वाले हैं ऑब्जर्वेशंस, आपके उसका यूज इन दैट केस। The next one is that जब आप इसका करते हो यूज फॉर ग्रुप डेटा, अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा रहने वाला है, मतलब सिंगल एक्सरसाइज के लिए सिंगल एफआई, तो आप इजीली कर सकते हो। जब आपके पास रहते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, इन दैट केस एक्सआई इज नथिंग बट जो भी कुछ आपके पास क्लास इंटरवल रहने वाला है, जो भी कुछ आपके पास क्लास इंटरवल रहने वाला है, यू जस्ट हैव टू कंसिडर that u plus l upon 2, that is upper limit plus lower limit upon 2, ये रहेगा आपका xi का वैल्यू फॉर दैट ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये अज्यूम मीन का एक्चुअल में केस रहता क्या है, बिकॉज आपने ये देखा होगा मीन के बारे में, सिर्फ मीन के लिए अज्यूम मीन, तो फिर डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। बट जो आपका अज्यूम मीन का केस रहता है, इट इज नथिंग बट सपोज अगर मैं आपको ये देती हूँ कि 50 देन 52 देन 48 46 एंड 51 इज विद अस। अगर इस सब के लिए आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप कंसीडर क्या करोगे, आई कैन सी दैट ये जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सारे के सारे 50 के अगल बगल आपको मिलने वाले हैं डेफिनेटली, मतलब जो आपका मीन का वैल्यू रहेगा ये भी इन्हीं के अगल बगल रहने वाला है। सो जो भी आप अज्यूम मीन का केस यूज करोगे, आपको सिर्फ ये अज्यूम करना था कि जो यहाँ पे आपको 50 दिखाई दे रहा था, इसी के आसपास रहने वाले हैं आपके वैल्यूज। ये रहेगा आपका फर्स्ट केस। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट जब भी आपको इस टाइप कुछ केस मिलता है, अगर आप 50 में से 50 करते हो माइनस, तो आंसर रहेगा आपका 0। जब आप 50 से ये आपको अभी 52 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर रहेगा +2। व्हाट वी आर कंसीडरिंग, जो भी कुछ आप ये अज्यूम मीन कंसीडर कर रहे हो, वो मीन आप ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से सबट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब 52 - 50 विल बी 2। नाउ 48 - 50 विल बी -2, देन 46 - 50 विल बी -4 एंड देयर विल बी 1। ये समझ में आ रहा है। अदरवाइज आप क्या लेने वाले थे, ये रॉ डेटा है, मतलब समेशन xi अपॉन है, बट इन दैट केस समेशन लेने के अलावा आप इसके सिर्फ समेशन लोगे, मतलब 0 +2 -2 -1 1। इट मींस दैट इट विल बी अराउंड 2, तो आपका हो जाएगा कैंसिल, एंड -3 विल बी देयर। -3 आपको ये जो आपके पास अलग अलग 5 ऑब्जर्वेशंस थे, सब में करना था डिवाइड। 3 को आपको कट करना है इक्वल 5 पार्ट्स में, सो दैट आप सबको दे सके। ये क्लियर हो रहा है, मतलब ये आपको क्या मिलेगा, 50 - 0.6 which is nothing but your answer will be 49.4। गेटिंग दिस वन, समझ में आया कर क्या रहे हैं। ये जो आपका पार्ट रहता है अज्यूम मीन, मतलब एक कोई ऐसा मीन आप खुद से अज्यूम करने वाले हो। तो जब भी इस टाइप का आपके पास रहता है डेटा, देन फॉर दैट आपको ये ऐसा कुछ करना पड़ता है। बट अब आपके पास क्या रहने वाला है, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दिस रॉ डेटा, अब आपके पास कुछ ग्रुप डेटा रहने वाला था, बट वॉट एवर इट इज, उसके लिए भी आप सेम वे से कंसीडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास रहेगा 50, 52, 48, 46, 51, ये अगर ऐसा कुछ आपके पास रहता है, तो आप खुद से ऐसा एक कोई अज्यूम मीन खुद से कंसीडर करोगे। ओके, जो आपका रहेगा बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ xi। उसके लिए सपोज हम फ्रीक्वेंसीज कंसीडर करते हैं, कुछ रहेगा 3, 4, 2, 1, 3 ऐसा कुछ। तो अज्यूम मीन जब आप कंसीडर करते हो ग्रुप डेटा के लिए, देन व्हाट वी हैव टू डू, ऐसा एक अज्यूम, अगेन सपोज हम 50 ही कंसीडर कर देते हैं। अगर आप 50 कंसीडर करोगे, तो जो भी कुछ आपको नेक्स्ट मिलने वाला है उसे हम बोलेंगे di। देन di इज नथिंग बट ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से जो भी कुछ आप अज्यूम करने वाले हो वैल्यू, जैसे हमने लास्ट केस में बोला था, यहाँ पे भी हम कंटिन्यू करते हैं a = 50 ओनली।
ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन से अगर आप 50 करते हो सबट्रैक्ट, तो फर्स्ट केस में रहेगा 0, देन 2, देन -2, -4 एंड 1। ये इतना समझ में आ रहा है। अगर आपके पास सिर्फ वैल्यू रहता है तो फिर आप मीन पुट करते हो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन का, वेयर कैपिटल एन इज नथिंग बट आपको सारे फ्रीक्वेंसीज की एडिशन कंसीडर करनी है, विच इज नथिंग बट 3 + 3 + 3 आपको देगा आंसर 9, 9 + 4 विल बी 13। ओके, ये इतना क्लियर हो रहा था। इंस्टेड ऑफ एफ आई एक्स आई आप यहाँ पे यूज करोगे डी आई इंटू एफ आई, बिकॉज वी नो दैट अगर आपको x बार फाइंड आउट करना था तो आपका आंसर रहता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई। बट आप अब खुद से कुछ कंसीडर कर रहे थे d के लिए, तो हमारा फॉर्मूला हम चेंज करेंगे समथिंग लाइक दिस, समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, तो di into fi मतलब 3 into 0, आंसर विल बी 0, 4 into 2 8, -4 -4 एंड 3। ये इतना क्लियर हो रहा है पूरा केस। सो अगेन आपको क्या कंसीडर करना है, इस सब की एडिशन, सो +8 -8 हो जाएगा कैंसिल, आंसर विल बी ओनली 3। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका क्या रहेगा समेशन ऑफ x, बट जो एक्चुअली आप कंसीडर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ d, इन टर्म्स ऑफ d आपको मिल रहा था। सो फॉर दैट अगर आपको एक्चुअल में मीन चाहिए देन व्हाट यू विल कंसीडर हियर, जैसे लास्ट केस में किया था, जो भी कुछ आपका अज्यूम मीन रहता है यू जस्ट हैव टू ऐड दिस वैल्यू इनटू दैट नंबर, दैट इज यहाँ पे आप कंसीडर करोगे 50 + 3 अपॉन 13। यहाँ पे आपके पास आंसर रहेगा 50 + 3 अपॉन 13। आर यू गेटिंग दिस वन? मीन के बारे में बहुत बार हम कुछ कंसीडर करने वाले हैं, कई बार आपको यूज करना है जो हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। अज्यूम मीन के अलावा अगर आपके पास रहता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन का तो हम एक्चुअल में क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं आफ्टर 5 मिनट्स, सो विल जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स इन दैट क्वेश्चन। बट अगर अज्यूम मीन रहता है तो आप कुछ ऐसा कंसीडर करोगे। नेक्स्ट पार्ट आपका रहता है स्टेप डेविएशन का, इन दैट केस यू आप कर देते हो चेंज, ऐसा कुछ ईच एंड एवरी एक्स आई में से आप एक वैल्यू करोगे सबट्रैक्ट, एंड जो भी आपकी क्लास विड्थ रहती है, जो भी हाइट ऑफ द क्लास रहता है, उससे आप करने वाले वो डिवाइड। ये करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलने वाला था वो u बार का मिलेगा, राइट? बिकॉज जैसे आप समेशन एफ आई एक्स आई कंसिडर करते थे, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई के अलावा आप समेशन एफ आई इंटू यू आई कंसिडर करोगे, उसके बाद आप समेशन एफ से करोगे डिवाइड, सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u बार, बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार। तो जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा था एज इट इज कंसिडर करो विथ दैट बार, बिकॉज आपको ये पता है दैट बार साइन इज यूज्ड फॉर मीन ऑफ दैट नंबर। ओके, नेक्स्ट मीन के बारे में इंपॉर्टेंट एंड लास्ट केस फॉर दैट मीन इज नथिंग बट कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। अगर आपके पास ऐसे दो डेटा है जिसके फर्स्ट के लिए n1 रहेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 will be mean for it, n2 will be total number of observation and x2 will be mean for it. Then for that combined data is given, combined mean is given as n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar upon total number of observation, which is nothing but n1 plus n2. We have to use this formula for many more times. Okay, clear हो रहा है ये इतना पार्ट? नेक्स्ट केस आपका रहेगा रिगार्डिंग विथ मीडियन, मोड एंड मेनी मोर केसेस. So for that we'll just start with the actual calculations. Okay, see, in the frequency distribution, if a, that is assumed mean, is equal to 55 and summation fi is given as 100, h is given as a 10 and summation of fi into mu, there should be ui, okay, is equal to -30, then we have to find mean of the distribution. अगर आपके पास assume mean रहता है तो आप x बार क्या बोलते हो, a प्लस जो भी कुछ आपको चेंजेस मिलने वाले थे जिससे आप यूजुअली म्यू से या फिर d से या फिर u से डिनोट करते हो, fi into ui अपॉन समेशन fi.
तो आपके पास कौन कौन से वैल्यूज है यहाँ पे देखो, वो पुट करो। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें करना था फाइंड, राइट। ए इज नथिंग बट एज्यूम मीन, जो आपको क्लियरली गिवन था एज अ ए। गेटिंग दिस वन बच्चों, ये क्लियर हो रहा है पार्ट। नेक्स्ट थिंग, समेशन एफ आई भी आपको क्लियरली क्या दिया था, 100। एच की वैल्यू की क्यों गिवन है आपको, बिकॉज आगे जाके अज्यूमिंग के लिए आप वो कंडीशन यूज करने वाले हो। एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो वो यू आई आपको कहां से मिलता है, यू आई इज नथिंग बट माइनस ए अपॉन एच का वैल्यू, राइट। सो जो हमने अभी डिस्कस किया था वही आप सिर्फ यहाँ पे करोगे यूज। वी नो दैट मीन इज गिवन है, जब आपके पास h की वैल्यू रहती है तो जिस आपको इनटू h कंसीडर करना है। मीन इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, हमें कुछ दिया था -30, जस्ट डिवाइडेड बाय summation fi which is nothing but 100 into h. So 0 0 will get cancelled, again this 0 will get cancelled, so 52 minus 3 which is not 55 minus 3, so our answer will be 52। ये क्लियर हो रहा है। अज्यूम मीन के लिए जब आपको h दिया जाता है तो हमें ये सिर्फ यहाँ पे into h लेना पड़ता है। हम जिस टाइप के जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ उतने ही करके जाओगे then you will definitely score out of marks in this chapter। सी, अब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या रहता है भाई, जब आप फाइंड आउट करते हो मीडियन का केस, तो हमें ये पता है अगर मीडियन आपको करना है फाइंड, देन फॉर दैट चाहे आपके पास xi into fi का वैल्यू रहेगा या फिर xi के अलावा आपको कुछ ऐसे क्लास इंटरवल्स में आपके पास वैल्यू रहेगी। देन फॉर दैट आप सबसे पहले CF का कॉलम करते हो फॉर्म। इस केस में अब आपको xi के अलावा क्लास इंटरवल गिवन था, बट वी नो दैट क्लास इंटरवल से आप xi पे कैसे जंप करते हो, अगर ये रहता है आपका क्लास इंटरवल, देन आप xi की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, xi is equal to something। For now what we have to do, we just have to find the following values जहाँ पे आपको डायरेक्टली CF दिया है। तो CF अदरवाइज आप फाइंड आउट कैसे करते हो, सपोज हम कुछ रैंडम वैल्यूज यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ रहेगा 5, देन 7, 4, 3, 2 एंड 10 सपोज। तो इसके लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हो, जो फर्स्ट वाला वैल्यू है आप एज इट इज पुट करोगे, एंड आफ्टर दैट जस्ट आपको zigzag मेथड का यूज करना है। दैट इज 5 plus 7 will be 12, 12 plus 6 will be 12 plus 4 will be 16, then 16 plus 3 will be 19, then 21 एंड लास्ट वन विल बी 31। मतलब ये जो CF आपका रहता है इट इज नथिंग बट, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपके पास है फर्स्ट वाला वैल्यू तो आप एज इट इज लिखने वाले हो। सेकेंड केस के लिए आप क्या करते हो, जो यहाँ पे वैल्यू है सिर्फ कर देते हो ऐड। इट मीन्स दैट आई कैन से 5 plus 7 is equal to x1, then can you tell me what will be value of x1? Correct, x1 is nothing but 12, then after that just adding these one, that is 12 plus x2, आंसर क्या रहेगा आपका 18, 12 plus x2 आंसर will be 18। अगर ये आपका 18 आंसर है इट मीन्स दैट आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी which is nothing but 18 minus 12 which is equals to 6। x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 minus 12 which is nothing but 6। अगेन आगे जाके आप क्या करोगे, ये जो भी कुछ वैल्यू था अब आपको 6 नहीं इसमें ऐड करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप उस क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करने वाले हो। इट मींस दैट दिस विल बी 18 plus 5 which is equals to x3। सो ऑब्वियसली x3 का आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, करेक्ट। And for last case 23 plus x4 equals to 30। मतलब x4 की आपकी वैल्यू क्या रहेगी, x4 is nothing but 30 minus 23 which is nothing but 7, which is nothing but 7। Done everyone, समझ में आ रहा है कैलकुलेशंस कैसे लिखना है। ये देखो, एंड जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ अगर आप PYQ अच्छे से करके जाते हो then you can easily score the full marks। We are the same thing here, okay? ये रहेगा आपका कैलकुलेशन। Now next question अलग नया टाइप का,
देखो अब इस केस में आपको मोड गिवन है, बट भाई एक बार ये बोलो मोड का आपका वैल्यू रहता क्या है? मोड इज नथिंग बट जब आपके पास ऐसे ग्रुप्ड डेटा रहता है, देन फॉर दैट आप मोड कैसे डिफाइन करते हो? मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एम आई राइट? ये इतना क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ये पूरा केस? L प्लस F1 माइनस F0। अब ये F1, F0, F2 एंड H रहते क्या है? फॉर दैट थोड़ा सा करो चेक। जब आपको L फाइंड आउट करना होता है, L इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है? जिस क्लास में मोड लाई करता है वो रहेगा आपका मॉडल क्लास। तो मोड डेफिनेटली आपका कहाँ पे लाई करेगा? जिन पे आपको फ्रीक्वेंसीज ज्यादा मिल रही थी। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, कुछ आपको मिल रहा था, देखो 5, x, 15, 12, 7। सो डेफिनेटली फर्स्ट चीज तो ये है कि अब आपको x की वैल्यू पता नहीं है, बट फिर भी 15 इज द ग्रेटर वन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट it is given that mode is equal to 67। मोड 67 रहेगा, मतलब ऑब्वियसली आपका मॉडल क्लास क्या रहने वाला है? मॉडल क्लास की आपकी वैल्यू रहेगी, मॉडल क्लास विल बी 60 to 70। मॉडल क्लास विल बी 60 to 70। ये इतना क्लियर हो रहा है? तो ऑब्वियसली मॉडल क्लास के लिए लोअर लिमिट क्या मिलेगा आपको? मॉडल क्लास के लिए लोअर लिमिट। देन जब आपके पास मॉडल क्लास की वैल्यू रहती है, मतलब L तो हो गया आपका फिक्स, व्हिच इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है उसे आप बोलते हो F1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है उससे आप बोलते हो F1। उसके पहले वाला रहेगा F0 एंड नेक्स्ट क्लास का रहेगा F2। सो नाउ you all the values. Mode is given as a 67. L का value lower limit of the model class which is nothing but 60. F1 is nothing but highest frequency. F0 is nothing but जो भी कुछ आपके पास highest frequency रहने वाली है वो छोड़ के first one preceding term जो भी कुछ है। And F2 is nothing but जो आपके पास ऐसा class था जिसको highest मिल रही थी उसके next वाले का केस। So now we just have to use this formula आपके पास है, मॉडल क्लास आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। So we can say that 67 is equal to मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आपको मिल रहा था कुछ 60। Then F1 की वैल्यू आप पुट करोगे 15, F0 will be x, F2 will be 12। So 15 minus x upon 2 times 15 which is nothing but 30 minus x minus 12। Hence the answer will be 60 plus 15 minus x upon 18 minus x into 10, right? That is अगर ये 60 जाएगा आपका LHS पे, then you will get 7 is equal to 150 minus 10x upon 18 minus x, right? Cross multiplication consider करो 18 7s are 126, 126 minus 7x is equal to 150 minus 126। Hence, you will get that thrice x is equal to 24. Hence, the value of x is equal to 8। जैसे मैंने बोला इस पूरे सेशन में आपको जितने PYQs मिलने वाले, अगर वो सिर्फ आप उतने ही क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो, then definitely you will score very good marks this chapter। अब देखो आपको डायरेक्टली मोड फाइंड आउट करना है, देन फॉर दैट आपको पता क्या होना चाहिए? जहां पे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है। आई कैन से दैट 35 आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, hence the value of F1 will be 51। अगर value of F1 becomes 35 then definitely मॉडल क्लास आपका हो जाएगा 40 to 60। तो फिर मॉडल क्लास के प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये आप कंसिडर करोगे एज एन F0 एंड ये कुछ रहेगा आपके पास एज अ F2। तो आपके पास रहता है फॉर्मूला, आप डायरेक्टली यूज करो, यू विल गेट द आंसर। L is nothing but 40, so 40 plus जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी which is nothing but 35 minus previous one की रहेगी 10 divided by 2 into 35 minus 10 minus 50 into h। h कहाँ से आता है? क्लास विड्थ।
जो मॉडल क्लास आपको मिलने वाला था उसके लिए आप हाईएस्ट माइनस वैल्यू कंसीडर करोगे, विच इज नथिंग बट h की जगह पे आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली 20. So after calculating this you will get your answer. See, it will be something like this. So 50 minus 35, which is nothing but 15, divided by 2 into, okay, yes, frequencies are 35 to 50, right? Yes, extremely sorry, my mistake. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली थी 50 यहाँ पे. सो ये आपका रहेगा वैल्यू ऑफ 50 इज f1, ये f0 एंड ये रहेगा आपके पास f2. राइट, माय बैड, सॉरी. हेंस ये आप करोगे पुट, लोअर लिमिट फिर आपका बन जाएगा 60, देन 50 माइनस 35 अपॉन 2 टाइम्स 35 माइनस 40 इनटू क्लास विड्थ तो रहेगी आपकी 20. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 60 प्लस दिस विल बी 15 अपॉन 100 माइनस 75 इनटू 20. ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो इनटू h रहता है ये सिर्फ इस पार्ट के लिए रहेगा. ओके, नाउ हियर यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कंबाइंड बिन का क्वेश्चन किया था. फॉर दैट average score of the boys in the examination of a school is 71 and that of the girls is 73. Average score of boys will be 71 and girls का कुछ आपको directly average score दिया था 73. मतलब you have the value of x1 bar which is nothing but 71 and x2 bar is 73. Sorry. ओके, तो कंबाइंड का आपको फॉर्मूला यूज करना है. सबसे पहले ये समझो कि जो आपके पास है क्वेश्चन दिया क्या है उसमें. नाउ एक और चीज आपके पास है, एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8. दैट इज कंबाइंड मीन आपके पास था 71.8. वन मोर थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द number of girls who appeared in the examination. मतलब आपको x1 as to x2 करना है फाइंड. You just have to find the value of x1 as to x2. बट आपको क्या पता है, जो वैल्यूज आपको पता है सिर्फ आप नोट डाउन कर दो. देखो टोटल स्कोर ऑफ द बॉयज विल बी, बिकॉज आपको पता नहीं है कि बॉयज कितने हैं. जितने भी टोटल बॉयज है हम बॉयज का नंबर x कंसीडर करते हैं एंड गर्ल्स विल बी y. सो वी कैन से दैट अगर बॉयज का एवरेज स्कोर रहता है 71, वी नो दैट x बार इज नथिंग बट समेशन xi ओवर n. तो n की जगह पे आप x पुट करने वाले हो, नंबर ऑफ बॉयज. करेक्ट. आप सबसे पहले पे करोगे n पुट, देन यू कैन से दैट 71 into x is nothing but score of the boys in the examination. Similarly girls का स्कोर आपको क्या मिलेगा फिर 73 times y. मतलब आपके पास अभी वो वैल्यूज है, सिर्फ कंबाइंड मीन का आपको यूज करना है फॉर्मूला. फिर टोटल स्कोर ऑफ बॉयज प्लस टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. That is 71 times x plus 73 times y upon x plus y, because हमने नंबर ऑफ बॉयज कंसीडर किए थे x, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी y. सो ये आपको कुछ मिलेगा आंसर 71.8. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हो देन यू विल गेट दैट 71x plus 73y equals to 71.8 times x plus 71.8 times y. सारे y के वैल्यूज एक साइड पे कंसीडर करो, सारे x के वैल्यूज आप वन टाइप पे करोगे कंसीडर. Done up to this. So 73 minus 71.8, which is nothing but 1.2 times y, is equals to 0.8 times x, because 70.1 minus 71. अगर आपको सिर्फ x and y का रेशियो चाहिए, मतलब आपको x अपॉन y यहाँ पे करना है कंसीडर. मतलब या तो वो डायरेक्टली आपको n1, n2, x1 बार, x2 बार के वैल्यूज देंगे, या फिर इस टाइप के ऐसे कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको करने हैं आगे जाके सॉल्व. गेटिंग दिस वन? ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ विल जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन टैबुलर फॉर्म का कैसे है, बट इस केस में देखो आपको मीन भी मीडियन भी फाइंड आउट करना है एंड मोड भी फाइंड आउट करना है, व्हिच इज एट. Yes,
Obviously this question asks you for to 5 marks. Okay, some students of the class X donated for welfare of old age persons. Their contribution are shown in the following frequency distribution. जिन बच्चों ने 0 to 20 में किया था, ऐसे टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 5. सेम फॉर 20 to 40 के लिए 8, 40 to 60 के लिए रहेगा 12, देन 60 to 80 के रहेगा 11 एंड 80 to 100. सबसे पहले आपको कंसीडर क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज दैट मोड तो आप डायरेक्टली कर पाओगे, राइट? मोड के लिए आप चेक क्या करोगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? इस केस में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही थी 12, मतलब f1 का वैल्यू रहेगा आपका 12, तो फिर f2 विल बी 11 एंड f0 विल बी 8. ओके, irrespective of the values of f10 f2 आपको यही देखना है, जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो आप कंसीडर करोगे f1, उसके पहले वाला रहेगा f0, नेक्स्ट वन विल बी f2. तो आपको यहाँ पे मॉडल क्लास क्या मिलेगा? मॉडल क्लास इज नथिंग बट जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रहती है वो बन जाएगा आपका मॉडल क्लास. सो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट है, इसके लिए वो बन गया आपका मॉडल क्लास, राइट? इट मींस दैट फॉर नाउ कैन से मोड इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला तो याद रहेगा होगा आपका, राइट? जब भी आप सम के लिए लिखोगे रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहना चाहिए. सबसे पहले आप जो एक्चुअल में फॉर्मूला यूज करने वाले हो, आप सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखोगे, then you will go for the another values. So mode is equal to L plus and so on, correct? That is lower limit of the model class into f1 minus f0. Can I directly put these values here? That is 12 minus 8 upon 2 times f1 minus f0 minus 11 into class width, which is nothing but 20. Are you getting this one? Done. And आपका नेक्स्ट पार्ट क्या रहने वाला है? देखो, नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट आपको बाय मीडियन फाइंड आउट करना है. ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली गेट इट. जब आपको फाइंड आउट करना है मीडियन, तो मीडियन के लिए तो आपको एचसीएफ लेना पड़ता है, करेक्ट? अब का केस अच्छे से देखते हैं. सी, आपके पास ये थ्री फ्रीक्वेंसीज. द फर्स्ट थिंग इज दैट मुझे CF का कॉलम फॉर्म करना है. फर्स्ट वैल्यू तो आप एज इट इज लिखोगे, देन आफ्टर दैट आपको 5 plus 8 ये ऐसे मिलने वाला था, देन 13 plus 12, देन 25 plus 11 which is nothing but 36, and last one will be 36 plus 4. So after this आपको n का वैल्यू मिल जाएगा which is nothing but summation n. जब भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना होता है, यू नो दैट मीडियन इज नथिंग बट मिडल मोस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे अगर आपको टोटल 40 ऑब्जर्वेशंस मिलने वाले हैं, तो उसके लिए मिडल मोस्ट वैल्यू विल बी 20, करेक्ट? 20 के लिए 40 upon 2 which is nothing but 20. ये जो 20 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, CF के कॉलम पे चेक करो, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन के लिए तो रहेगा ये, देन 13 तक आपका 20 to 40 रहने वाला है, उसके बाद 25 तक आपका 40 to 60 मिलने वाला था क्लास इंटरवल. इट मींस दैट 20 के लिए आपको क्लास इंटरवल क्या मिलेगा यहाँ पे? 40 to 60. दैट इज आपको अभी मीडियन क्लास मिलेगा. वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, आपको सिर्फ मीडियन का यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला which is given as. जैसे मोड के लिए आप L से स्टार्ट करने वाले थे, वैसे ही यहाँ पे भी आप L से ही स्टार्ट करोगे. जैसे मोड के लिए आप L का वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कंसीडर करने वाले थे, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका L क्या रहेगा? लोअर लिमिट फॉर मीडियन क्लास, प्लस n by 2 minus CF upon F into H. अब ये CF क्या रहता है? जो भी कुछ आपका मीडियन क्लास रहेगा, मीडियन क्लास के प्रीवियस का CF, बिकॉज आपने जो ये 20 कहाँ जाएगा ये देखा था, वही से तो आपको मिल रहा था. ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? 20 के लिए आपने क्या देखा? 13 के आगे जाने वाला, राइट? इसके लिए जो 13 रहता है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ CF. जो आपके पास रहने वाला था मीडियन क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी आप F की जगह पे पुट करोगे. सो यूजिंग दिस 40 which is nothing but मीडियन क्लास का लोअर लिमिट जो रहेगा आपके पास 40 to 60,
40 प्लस 20 माइनस 13 अपॉन 12 इंटू 20, ये रहेगा आपका फिर आंसर 40 प्लस 7 अपॉन 12 इंटू 20 विच इज नथिंग बट दैट्स इट। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये रहेगा आपका आंसर। अगर आप यहाँ पे देखते हो 3 या 4 के लिए कंसीडर कर सकते हो, मोड फाइंड आउट करोगे फिर। नाउ सी, सिर्फ आपको मोर देन टाइप ऑगिव कर्व फाइंड आउट करना है, जो ड्रॉ करना है। अब आप मोर देन टाइप फाइंड आउट कैसे करते हो? एलसीएफ का ही केस अब तक जो आप ले रहे थे लोअर के, ये समझ में आ रहा है? जब आपको ऐसे मिलता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते समय आप फर्स्ट वैल्यू से कंसीडर कर रहे थे। जब लेस देन का केस रहता है तो आप फर्स्ट F1 से चेक करोगे, बट इस केस में आपको मोर देन टाइप फाइंड आउट करना है। इट मींस दैट आप लिखोगे क्या, सबसे पहले जो के पास रहेगा विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट केस, मतलब सबसे पहले फर्स्ट वाला वैल्यू आपने चेक किया, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला वैल्यू चेक किया, राइट? उसके बाद ये जो 22 आपको मिलने वाला था, 22 इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। क्लियर हो रहा है? जैसे F1 F2 लेते हो वैसे ही, या तो ये कंसीडर करो या फिर 100 माइनस 95 रहेगा आपका लास्ट केस के लिए, देन 95 माइनस 87 रहेगा आपका इसके लिए। ऐसे करते करते आपको मिल जाएगा, ओके? बट ये आपके पास वैसे भी मोर देन का केस रहने वाला था। इट मींस दैट अगर आप 240 कंसीडर करते हो वैल्यू ऑफ x, आर यू एबल टू सी दिस वन? सी, अगर आप 240 कंसीडर करते हो वैल्यू ऑफ x, देन फॉर दैट आपको fi की वैल्यू पुट करनी है 100। आप हमेशा y एक्सिस पे fi पुट करोगे एंड x एक्सिस पे मोर देन के लिए, मतलब जो xi के वैल्यू रहते हैं। जब भी आप ऐसे कंसीडर करने वाले हो, डोंट फॉरगेट टू पुट दैट ब्रेक थ्रू पॉइंट बिकॉज इट कैरीज हाफ मार्क। देन अब 240 के लिए आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही थी 100, देन उसके बाद आपके पास था 280 के लिए देखो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही थी 95, सो अब यहाँ पे 95 करोगे पुट, 320 के लिए 87। सिर्फ आपको पॉइंट्स प्लॉट करते जाना है, ओके? गेटिंग दिस वन? इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ओके? ये रहेगा सिर्फ आपको जहां पे प्लॉट करना था मोर देन कर्व। मोर देन कर्व का मतलब है, मतलब आप कर जाओगे लास्ट से, ओके? फर्स्ट डेफिनेटली आपको 100 मिलने वाला था, देन 95, देन 87, ऐसे करते करते आप जाओगे। दिस विल बी द केस ऑफ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, ओके? नाउ अब ये पार्ट क्या है, देखो आपको सबसे पहले मोर देन टाइप ऑगिव कर्व करना था फाइंड, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ मोर देन ऑगिव कर्व आपको उसके लिए मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन इज नथिंग बट हम बोलते हैं मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू तो आपको n से इजीली समझ में आ जाएगी, बट फॉर दैट यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज थे। हमारा क्या फिक्स था भाई, जो भी कुछ फ्रीक्वेंसीज रहेंगे वो आप y एक्सिस पे नोट करने वाले हो एंड ऑब्जर्वेशंस रहेंगे आपके x एक्सिस के लिए। सो फॉर दैट आप सबसे पहले मोर देन टाइप का ऑगिव कर्व फॉर्म करोगे। फॉर दैट वैल्यूज आपको कंसीडर करने हैं, ये ऐसा कुछ था आपका पास गिवन पार्ट दैट फर्स्ट था आपके पास 20 to 30, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on up to 50 to 60. Its corresponding frequencies are given as 3, 9, 12, 20 and 6. सबसे पहले हमने ये नोट डाउन कर दिए, ओके? अब आपको ये पता है जब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए, सो फॉर दैट आपको सिंगल xi की वैल्यू चाहिए, एंड सिंगल xi के वैल्यू के लिए आप क्या कंसीडर करते हो, क्लास इंटरवल, राइट? क्लास मार्क इज नथिंग बट मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। एक बार सबसे पहले नोट डाउन करोगे, देन क्लास मिड आप इसमें सिर्फ ऐड करते जाओगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आपको मोर देन के बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे कुछ आपको 3, 9, 12, देन 20 एंड लास्ट वन विल बी 6, ऐसा कुछ गिवन था।
जब आप मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करते हो दैट इज MCF, देन जो भी कुछ आप कर रहे थे सिर्फ आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। मतलब सबसे पहले आप 6 एज इट इज लिखोगे। जब आपको जाना है यहाँ पे तो आपको फाइंड आउट करना होगा 6 + 20 विच इज नथिंग बट 26। देन आप जाओगे 26 + 12 के लिए, गेटिंग दिस वन विच इज नथिंग बट 38। देन आप जाओगे 38 + 9 which is nothing but 47, and at the last 47 + 3 which is nothing but 50. This will be the procedure of finding out the value of MCF which is nothing but more than cumulative frequency. Are you getting this one? तो एक बार ये जब वैल्यू आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करो। जो आपके पास क्लास मार्क रहने वाले थे 10, 20, 30 एंड सो ऑन, आपको फर्स्ट के लिए देखो फिर जब आप x की वैल्यू कंसीडर कर रहे थे xi जब 10 रहेगा इन दैट केस MCF आपको मिल रहा था 50, इसके लिए हमने 10 एंड 50 ये पॉइंट किया है प्लॉट। उसके बाद 20 के लिए आपको मिल रहा था 47, सो 40 से उतने ही आप आगे जाओगे। जब भी आप इस टाइप क्वेश्चंस यूनिट कंसीडर करने वाले हो इन दैट केस आपको ये लिखना होगा। इधर आप लिख सकते हो ऑन द x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स और फिर 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, डेफिनेटली योर चॉइस। देन बट जो भी कंसीडर करो जैसे आपको लिखना है 10, 20, 30 एंड सो ऑन अप टू 50। 30 के लिए आपको MCF मिल रहा था 30, इसके लिए आप 30 या 38, तो 35 to 40 के लिए आप जाओगे अगेन ऊपर। अब 40 के लिए आपको 26 पुट करना था, बट आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर के लिए अगर 5 रहेगा तो ऑब्वियसली 26 के लिए आप क्या कंसीडर करोगे, बिकॉज यहाँ पे रहते हैं आपके पास इक्वल 10 पार्ट्स, राइट। तो ये जो आपके पास रहने वाले थे इक्वल 10 पार्ट्स में आपको 5 यूनिट्स को करना है, मतलब 1 यूनिट के लिए आपको 2 प्लेसेस मिले। इसी के लिए आप ये देख सकते हो 26 के लिए आप एक अगेन जाने वाले हो ऊपर एंड सो ऑन अप टू 6। बट नेक्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट इज दैट आपको फाइंड आउट करना था मीडियन क्या रहेगा। आप क्या बोलते हो, मीडियन इज नथिंग बट मिडल मोस्ट वैल्यू, मतलब n/2 के लिए जो भी कुछ आपका वैल्यू रहने वाला है वो आप बोलोगे मीडियन। बट n का वैल्यू था आपका 50, सो n/2 रहेगा आपका 25। सो 25 के लिए जो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले आप ये MCF का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, मतलब ऐसे आपको स्मूथली एक ग्राफ ड्रॉ करना है, करेक्ट। ये रहेगा इक्वल, आप पॉइंट सिर्फ करते जाओगे एंड देन 25 से अगर आप इस पे करते हो अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट देन इट विल बी 26। सो आप ये बोलोगे रिक्वायर्ड मीडियन विल बी 26। अगेन लास्ट टाइम ऐसे ही कंसीडर किया था, आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए आप xi into fi का यूज करोगे अपॉन समेशन fi, एंड मीडियन के लिए तो आपके पास वो जो हम पूरा डिस्कस कर रहे थे कि आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं एंड आफ्टर दैट आप चेक करोगे। बट द मेन ट्विस्ट इज दैट अगर आप यहाँ पे करते हो कंसिडर, कैन आई से दैट द गिवन डेटा इज अ कंटिन्यूअस वन? नो, बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था, जहां पे आपका फर्स्ट ग्रुप एंड होगा वहीं से सेकेंड ग्रुप स्टार्ट होना चाहिए, राइट। मतलब 52 एंड 53 वाज देयर, तो ये जो भी कुछ है वो आपको करना होगा साथ। सो उसके लिए चेक क्या करोगे आप, जो भी यहाँ पे कंडीशंस आपके पास है, डिफरेंस क्या रहेगा, देखो 53 एंड 52, राइट। मतलब डिफरेंस था आपके पास 1 का, 53 माइनस 52 which is nothing but 1, but वो आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, करेक्ट। सो फॉर दैट यू विल जस्ट डिवाइड इट बाय 2, आंसर विल बी 0.5। ये जो भी कुछ आपको 0.5 मिल रहा था आप ईच एंड एवरी अपर लिमिट में ऐड करते जाओगे एंड लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे। जो भी कुछ
क्लिक होना चाहिए वो पार्ट इतना ही, अदरवाइज बाकी सब आप इजीली कर सकते हो। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे करना है यहाँ पे देखो। वन मोर थिंग इज दैट एक्सआई के लिए आप अगेन वो फिर स्टेप डेविएशन मेथड का भी कर सकते हो यूज। सबसे पहले आपने क्या किया है, वो जो 0.5 था ईच एंड एवरी केस में कर रहे थे ऐड, अपर लिमिट में आप करोगे ऐड, लोअर लिमिट से आप करोगे सब्ट्रैक्ट। तो जो भी कुछ आपके पास यहाँ पे था 252 वो आपने कंसीडर किया 49.5। अगेन आते समय आपको जो क्लास विड्थ मिल रहा था सिर्फ फर्स्ट के लिए आप अच्छे से फाइंड आउट करोगे, ईच एंड एवरी सेकेंड पार्ट के लिए आपको उसमें क्लास विड्थ ऐड करते जाना है। इट मींस दैट यहाँ पे आपको क्लास विड्थ दिखाई दे रही थी 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे भी आप क्या कंसीडर करोगे, ईच एवरी केस में सही आप आगे ऐड करते जाओगे। ये इतना क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब फॉर दैट आपको सबसे पहले xi फाइंड आउट करना पड़ेगा। xi इज नथिंग बट मिड वैल्यू ऑफ दिस, ऐड करो 49 प्लस 52 प्लस 1, ये ऐसा कुछ रहेगा आपका आंसर 102 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट 51। ये जब क्लियर हो जाएगा तब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दैट क्लास विड्थ कुछ आपको मिल रहा था 3 करके, इसके लिए आप +3 +3 +3 ऐसे करते जाओगे। तो यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन का मेथड है +3 अगर करते जाओगे तो 51 +3 कुछ मिलेगा 54। अगेन क्लास विड्थ आपको यहाँ पे 3 मिल रहा था राइट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप a का वैल्यू जो मिड वैल्यू आपको मिलता है, जो भी कुछ आप कंसीडर करोगे वो विद रिस्पेक्ट टू xi ही करने वाले हो राइट। fi आपका रहेगा एज इट इज, fi आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप a पुट करोगे, बस क्लास विड्थ आपकी थी 3, इसके लिए आप कंसीडर क्या करोगे, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से आप 57 सबसे पहले करोगे सब्ट्रैक्ट एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय 2। ये रहेगा आपका एक्चुअल केस, बट हम ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज लिखते समय जब आप डिवाइडेड बाय h ही कंसीडर करते हो तो जो भी कुछ आपने अज्यूम किया था वहां पे आप 0 लिखोगे, उसके नीचे आप 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे, उसके ऊपर आप -1 -2 -3 ऐसे लिखते जाओगे। डन, ये थे आपके पास गिवन फ्रीक्वेंसीज। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दैट अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो अदरवाइज तो आप समेशन fi into xi का ही यूज करने वाले थे, बट राइट नाउ इस केस में आप चेक क्या करोगे, जो भी कुछ पे आपको दिखाई दे रहा था इस केस में fi into di करोगे इंस्टेड ऑफ fi into xi। आप सबसे पहले fi into di का यूज करोगे बिकॉज़ हम अज्यूम का केस यहाँ पे पुट कर रहे हैं राइट। सो फॉर दैट 15 into -2 -30 110 into, अब क्लियर हो जाएगा आपको कि हम क्यों कर रहे हैं राइट, बिकॉज into 35 into 51 ये अलग करने के अलावा ये इजीली मिल जाता है। एक केस तो आपका वैसे भी 0 ही रहने वाला है राइट। देन 115 into 1 which is nothing but 1, then 15 and next one will be 50। now you just have to add these two। कई बार बच्चे यहाँ पे ना बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कैलकुलेशंस करते हैं, सो आई विल सजेस्ट यू दैट जो निगेटिव वैल्यूज है उनका एक साथ कंसीडर करो। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -140, एंड जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनका एक साथ कंसीडर करो, जो आपको मिलेगा 165। सो +165 -140 you will get its answer as a 25 only। ओके, अब सबसे पहले मीन का जो केस है वो निपटा देते हैं। देखो मीन का फॉर्मूला क्या था आपका a प्लस, जब आप अज्यूम मीन कंसीडर करते हो तो समेशन fi x है अपॉन समेशन fi into h। a आपके पास था 57, सो 57 प्लस 25, 57 प्लस 25 upon 400 because summation fi x है upon summation fi, instead of x we are putting d there right, into h which is nothing but 57 plus 25 upon 400 into h, जो आपको आंसर देगा 3/16। अगर आप कंसीडर करोगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आपको करना भी पड़ेगा, so you will get its mean will be 57.80। done। And for finding out the value of median, I think you know that जब भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना पड़ता है तब आपको CF के लिए जाना है। मतलब जो भी कुछ आपके पास फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू है, यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी आपको CF का कॉलम बनाना है। जब आपको डायरेक्टली क्लियरली बोला नहीं जाता है तब यूजुअली आप LCF का ही यूज करो बिकॉज वो कैलकुलेशन इजीली हो जाता है।
15, then 15 plus 110 which is nothing but 125, then 125 plus 135 which is nothing but 260 and so on. तो n का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, n का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला था, करेक्ट, n का वैल्यू अगर रहता है 400 देन 400 अपॉन 2 which is nothing but 200, n by 2 का वैल्यू अगर आपको 200 मिलता है तो फिर मीडियन का फॉर्मूला यूज करो, you will get your answer, you will get your answer. Done. So next question, अगेन ये वाला भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे. आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो आपको मॉडल वेट फाइंड आउट करना है विच इज नथिंग बट आपको सिर्फ मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फॉर दैट आपको F1, F0, F2 डायरेक्टली क्वेश्चन में से ही दिखाई दे रहा है. आई थिंक यू कैन डू दिस एज योर होमवर्क, राइट. ये भी PYQ है बट अगर आप देखते हो ना तो मोड सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है बिकॉज मोड के लिए आपको अलग से कुछ भी कॉलम नहीं फॉर्म करना पड़ता. जो गिवन डेटा आपके पास है वो अगर आप एज इट इज रो फॉर्म में लेते हो तो भी आपको चलता है, बट अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो एक्स्ट्रा कुछ आपको वो CF का केस यूज करना पड़ता है. अगर मीन चाहिए तो अगर आप अज्यूम मीन का फॉर्मूला यूज करने वाले हो तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा अगेन कॉलम वहां पे ऐड करना पड़ता है. ओके, गेटिंग दिस वन. So you can do it as a homework. We'll just go with the next, that is the missing frequency one because उस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एंड जो करने के लिए इजी भी है. सी okay, now what is the question here? That find the missing frequency F1, F2 and F3 in the following frequency distribution when it is given that F2 as to F3 will be 4 upon 3. Fine, मतलब आपको रेशियो गिवन है F2 अपॉन F3 का. सबसे पहले गिवन पार्ट क्या है ये चेक करते हैं. F2 अपॉन F3 is given as 4 upon 3 and its mean is 50. ठीक है, मीन का वैल्यू 50 है. सेकेंड थिंग आपके पास टोटल गिवन है मतलब समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अगर आप कंसीडर करते हो तो आप 150 से वो इक्वेट कर सकते हो. इट मींस दैट 17 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 19 इज इक्वल टू आपको 120 मिलेगा. So using this you will only get the value of F1 plus F2 plus F3 only because F1 plus F2 plus F3 के लिए आप क्या करोगे 19 plus 17 जो आपको पास आने वाला है 36 आंसर you will just subtract it from 120. तो फिर आपको ये ऐसा कुछ मिल जाएगा. फर्स्ट कंडीशन रहेगा आपका ये. सेकेंड थिंग F2 अपॉन F3 गिवन है मतलब रेशियो का यूज करके आप कर सकते हो एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आपको मीन की वैल्यू पता है. अगर आपको मीन पता है तो मीन के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो जब आपके पास ऐसा ग्रुप डेटा रहता है. देन फॉर दैट मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन fi. समेशन fi 120 है, ये आपको पहले से गिवन पार्ट है, करेक्ट. मतलब मीन था आपका 50 एंड समेशन fi की वैल्यू जो आपको 120 दिखाई दे रही है ये आपको पहले से पता है. So we can say that x bar into summation fi, that is mean into summation fi, is equal to the value of summation xi into fi. And xi आप कैसे find out करते हो? xi is nothing but mid values of all the class intervals. Mid values of all the class interval. Are you getting this one? यहाँ तक clear हो रहा है ये केस, समझ में आ रहा है पूरा. तो फिर xi आपको कहाँ से मिलेगा? डायरेक्टली यहाँ से. यहाँ पे कुछ आपको 10, then 30, then 50 एंड सो ऑन. ऐसे करते करते अगेन आपको F1, F2, F3 में एक और रिलेशन मिल जाएगा. समझ में आ रहा है ये पूरा केस बच्चों? सी फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप fi into xi फाइंड आउट करते हो 10 into 17 is nothing but 170. F1 आपको पता नहीं है बट वी कैन यूज 30 times F1 there.
then 50 times f2, 70 times f3, and last one will be 19 into 90 which is nothing but 1710. तो आपको समेशन fi क्या मिलेगा यहाँ पे 1880 plus 30f1 plus 50f2 plus 70f3 is equal to this. One more thing, ये जो हमने find out किया था f1 plus f2 plus f3 is nothing but 120, that is summation 120 है. 120 is equal to addition of all those frequencies. So आपको एक condition यहाँ पे ऐसा मिलेगा that f1 plus f2 plus f3 is equals to 84. Now mean का formula use करोगे. Mean is nothing but थोड़े ज़्यादा calculations है but थोड़ा अच्छा question है. देखो या तो आपको ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के डायरेक्टली मीन और मीडियन और मोड फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज रहते हैं. यूजुअली कई बार ये पूछा जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन. हेंस ये जो भी कुछ आपके पास मिल रहा है 120 into 50 which is nothing but आपको आंसर मिलेगा 1. उसमें से 120 into 50 आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 6000 में से आप 1880 करोगे सब्ट्रैक्ट, सो दैट आपको सिर्फ ये वैल्यू मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट f2 upon f3 is equal to 4 upon 3, राइट. मतलब 3 times f2 is equal to 4 times f3. ये इतना क्लियर हो रहा है क्या? देखो यहाँ से सबसे पहले आप क्या बोल सकते थे, 6000 is equal to 1880 प्लस वो 30 times f1 का केस प्लस 50 टाइम्स f2 प्लस 70 टाइम्स f3. ये ऐसा कुछ आपको मिलने वाला था. तो सिर्फ ये ऐसा लिखोगे आप. बट अनदर पॉइंट इज गिवन दैट f2 upon f3 is equal to 4 upon 3. That is 3 times f2 minus 4 times f3 is equal to 0. अगर 3 times f2 minus 4 times f3 रहता है 0, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा था, देखो f2 and f3 का केस, f2 and f3 का केस. ये ऐसा कुछ आप बोलोगे. then there will be total 3 equations. फर्स्ट इक्वेशन था f1 f2 f3 के लिए जो आपको 84 मिल रहा था. सेकेंड था आपके पास ये ऐसा कुछ, एंड थर्ड वन इज गिवन एज दिस. सो यूजिंग दीज 3 इक्वेशन, अगर आप क्रैमर्स रूल का यूज करते हो, बिकॉज पहले ही आपने वो लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर किया है, ये आपको क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. उसका यूज करके इजीली आप ये बोल सकते हो f1 will be 28, f2 will be 32 and f3 will be 24. That's it. Wait. Okay. Now the next one. Again missing का ही केस है. देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास. ये थे आपके पास क्लास इंटरवल. अगर ये ऐसे रहते हैं क्लास इंटरवल एंड इसका मीन गिवन था आपको 62.8. मीन इज गिवन एज 62.8. then you have to find the value of missing frequency. but we know that अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है, मतलब समेशन fi into x है. गिवन डेटा ये था आपके पास 0 to 20, 20 to 40 and so on. बट अगर मीन फाइंड आउट करना है तो fi into x है, मतलब xi की वैल्यू आपके पास चाहिए. xi के लिए आप वहाँ पे करोगे पुट, पहले अलग केस 10, 30 which is nothing but midpoints of the class interval. जब आप midpoint का वैल्यू यहाँ पे करते हो पुट 10, 30, 50 and so on. So fi's क्या रहेंगे 10 into 5, 30 into 8, 50 into x. Are you getting this one? समझ में आ रही है? तो समेशन fi क्या रहेगा आपका 5 plus 8 plus 20 plus 7 plus 8 plus x. अगर x आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं. जो नंबर्स है सबसे पहले के वैल्यू तो कंसीडर करो 40 plus x and fi के लिए क्या करोगे 10 into 5 which is nothing but 50, then 30 into 8 जो आपको मिलने वाला था 240, 50x will be as it is 12 into 70, 840, 630 and last one will be 880. so summation fi xi आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये जो आपके पास xi का केस रहने वाला था, xi की वैल्यू जो रहने वाली थी वो एज इट इज छोड़ दो, बट रिमेनिंग टर्म तो आप कर सकते हो ना. दैट इज 50 plus 240 plus 840 plus 630 plus 880. ये ऐसा कुछ रहेगा 2640 plus 50x. अब
मीन गिवन था, मतलब हम मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन एफ आई एक्स है अपॉन समेशन एक्स इज गिवन एज 62.8, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करो, यू विल गेट योर आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर, ये जो पॉइंट है ये हमने अपॉन 10 कंसीडर किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करने के बाद आपको ये 628 इंटू 40 लिखना है, इंटू एक्स is equal to 26400 plus 500 times x. So after calculating this, you will get that 128 times x, 128 times x is equal to 1280. Hence, the value of x will be 10 only. The value of x will be 10 only. जैसे हमने बोला कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको रहते हैं, या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के रहेंगे या ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सीधे साधे होते हैं। ओनली थिंग इज दैट हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज है। अब ये तो देखो हमने कितनी बार किया था, राइट? डायरेक्टली मोड जब आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको क्या वहां पे f0 मिल रहा था, f1 की वैल्यू गिवन, f2 मिल रहा था। f1 आप क्या पुट करते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो बन जाएगा आपका f1 का वैल्यू, उसके प्रीवियस की फ्रीक्वेंसी f0 रहेगी एंड नेक्स्ट वन विल बी f2। जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको हाईएस्ट मिलती है वो रहता है आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए जो लोअर लिमिट रहता है, इट इज द वैल्यू ऑफ l, एंड मॉडल क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्लास विड्थ जो रहेगा इस केस में 10। तो डायरेक्टली आपके पास l, f0, f2 सारे वैल्यूज है, सिर्फ पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। अच्छे से देखो, डेफिनेटली मीडियन मोड का क्वेश्चन आने ही वाला है। मोड तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट करते हो। जो भी आपके पास इस टाइप का डेटा है, जस्ट डोंट फॉरगेट दैट गिवन डेटा आपका कंटिन्यूअस रहना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट क्लास जहां पे एंड हो रहा था वही से सेकंड क्लास आपका स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो लिखना पड़ेगा। जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज दैट CF वाला केस, ओके? मोर देन का, लेस देन, ऑगिव कर्व आप कैसे फाइंड आउट करते हो, सब पॉइंट्स हमने इस सेशन में कवर किए। अगर ये पूरा सेशन आप अच्छे से देखते हो, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस चैप्टर। ओके, डन एवरीवन? समझ में आ रहा है ये पूरा पार्ट? फाइन देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, एंड तब हम डेफिनेटली एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ओके?